Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum second year students and welcome to the physics classroom. Myself Irtaza Iqbal and I am here as your physics instructor. I hope and pray for your good health. Students, as we have started our first lecture of physics, that is electrostatics, and in our last lecture we have studied about Coulomb's law. So today we are going to learn about electric field and electric field intensity. So our learning objectives are: what is electric field? Learn about electric field intensity, to understand the concept of electric lines of force, what is fringing effect, and in last the properties of electric field. So let's start with origin of electric field. Origin of electric field means beginning of electric field. So ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ओरिजिन है वो भी अननोन है. That's why these forces are known as forces of nature. While the transmission of electric force is described by Michael Faraday by using the concept of electric field. मीन्स कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की ट्रांसमिशन को स्टडी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था माइकल फैराडे ने. And in this theory, he stated that the charge Q produces an electric field in space surrounding it, and when a charge Q naught is brought in its field, then it exerts a force F on it. The electric field around a charge is like a sphere in which other charges are influenced by it. The existence of electric field can be proved by bringing a charge Q naught into its field. मीन्स के एक चार्ज जो है वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड अपने स्पेस के अराउंड, अपने सराउंडिंग के अराउंड स्पेस में. और जब हम लोग कोई टेस्ट चार्ज से लेट्स से डेट क्यू नॉट चार्ज को उस पॉइंट चार्ज के पास लेकर आएंगे तो वो उस पर एक्सर्ट करेगा एक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज इज लाइक अ स्फीयर. मीन्स के अराउंड ए चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमारे पास डायरेक्शन है, जो शेप है वो एक स्फीयर की तरह है. इन विच अदर चार्जेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इट. एंड हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सकते हैं बाय ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इनटू इट्स फील्ड. उसकी फील्ड के नज़दीक कोई भी टेस्ट चार्ज को लेकर आके मीन्स के वो उस टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा ड्यू टू electric field. Now, what is an electric field? An electric field is the space or region around the charge in which it exerts electric force on another charge is called electric field. Electric field एक space और एक region है किसी भी charge के around, electric charge के around, जो कि exert करता है electric force on other charge due to electric field, and this space or region is called an electric field. लाइक इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज. और जब हम लोग एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में लेकर आएंगे तो ये इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सर्ट करेगा. और वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी फोर्स ऑफ रिपल्शन की, बिकॉज पॉजिटिव और सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर. एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स फॉर पॉजिटिव चार्ज आर रेडियली outward. It is the direction is shown in the figure. Similarly, when we have a negative charge और हम लोग एक नेगेटिव चार्ज के नज़दीक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर आएंगे, so the negative charge exert a force on this positive test charge, and this force is known as electrostatic force of attraction, because as we all know that unlike charges exerts force of attraction to each other. और इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन होगी. सो आपने इसमें ये याद रखना है कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है, और जो नेगेटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो रेडियली इनवर्ड है. सो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं. So electric field strength or electric field intensity at any point is defined as the force experienced per unit charge Q placed at that point. Means electric field strength और electric field intensity जो है वो
फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज है, मीन्स कि वो फोर्स जो कि एक चार्ज एक्सपीरियंस करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। If F is the charge experienced by positive charge Q naught at point P, then electric intensity at P is given by E is equal to F by Q naught. Here E is electric field intensity, F is electrostatic force, and Q naught is a charge, that is positive test charge. Means this is a formula for electric field intensity having electrostatic force and test charge. अगर अब इसमें हम लोग देखें कि हम लोग टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव ले रहे हैं, सो वाई वी आर टेकिंग टेस्ट चार्ज एज अ पॉजिटिव चार्ज। तो टेस्ट चार्ज को हम लोग पॉजिटिव चार्ज इस वजह से लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल जो है वो हाई पोटेंशियल है एज कम्पेयर टू अ लो पोटेंशियल। सो अगर हम लोग टेस्ट चार्ज को एक पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो उसका हमारे पास जो इफेक्ट्स हैं वो भी हाई आएंगे एज़ कम्पेयर टू अ नेगेटिव। हम लोग नेगेटिव भी ले सकते हैं बट उसमें जो हमारे पास उसके अफेक्ट्स, उसकी वजह से जो चेंजेस आएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड में वो इतनी ज़्यादा नहीं होंगी। डेट्स वाई वी टेक टेस्ट चार्ज इज अ पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू हाई पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पे आ जाएंगे। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो दैट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो बिल्कुल सेम होगी डेट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स के बिल्कुल सिमिलर होगी और इसमें हमारे पास यूनिट है। So SI unit of electric field intensity is Newton per coulomb or volt per meter. Means here F is a force and force SI unit of force is Newton and charge has coulomb. So the SI unit of electric field intensity become Newton per coulomb or volt per meter. सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मीन्स कि हम लोग एक पॉइंट चार्ज मीन्स कि बहुत ही स्मॉल साइज का जो चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसे स्टडी करेंगे और इसे स्टडी करने के लिए हम लोगों के पास एक पॉइंट चार्ज है और एक टेस्ट चार्ज है और टेस्ट चार्ज को हम लोग पॉजिटिव लेंगे क्योंकि पॉजिटिव इज़ अ हायर पोटेंशियल और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करेंगे बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। So as we know, Coulomb's law is equal to F is equal to K Q naught over R square। यहाँ पे हम लोगों ने Q और Q naught क्यों लिखा है, Q1 Q2 नहीं लिखा, because here we have Q is a point charge and Q naught is a positive test charge। तो हम लोग यहाँ पे Q1 और Q2 की जगह पे Q और Q naught लिखेंगे। ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन and E is equal to F over Q naught. This is a formula of electric field intensity. And we have second equation. So putting the value of F we get, हम लोग सेकेंड इक्वेशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू को पुट करेंगे जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 की फॉर्म जो है वो आ जाएगी E is equal to K Q naught over R square over Q naught। मीन्स कि इस F पे हम लोगों ने इस F को रिप्लेस कर दिया है कूलम्स लॉ से K Q नॉट ओवर R स्क्वायर और Q नॉट जो है वो बिल्कुल सेम रहा है। इन द नेक्स्ट स्टेप हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो Q नॉट जो है वो कैंसिल हो जाएगा Q नॉट से और हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू के जो कि हमारे पास कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। इसे हम लोग बाहर निकालेंगे और हमारे पास जो ब्रैकेट में रह जाएगा Q ओवर R स्क्वायर। देन के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और के इक्वल था 1/4 पाई एप्साई नॉट के, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्साई नॉट Q ओवर R स्क्वायर। इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे E के पे वेक्टर का साइन लगाएंगे और वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग एक वेक्टर को ऐड करते हैं जो कि डायरेक्शन बताता है, डेट इज यूनिट वेक्टर R हैट, वेयर R हैट इज अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q टू Q नॉट, जो कि डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। और ये डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम पॉइंट चार्ज टू टेस्ट चार्ज की तरफ है, फ्रॉम पॉइंट चार्ज टू टेस्ट चार्ज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो
वो आउटवर्ड थी, आउटवर्ड, तो ये आउटवर्ड होगी तो ये किसकी तरफ जाएगी, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की तरफ। सो व्हाट आर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक रीजन और स्पेस है जहाँ पे एक पॉइंट चार्ज जो है वो फोर्स एक्सर्ट करता है किसी दूसरे टेस्ट चार्ज पे। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द विसिनिटी ऑफ अ चार्ज बॉडी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इमेजिनरी लाइन कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। मीन्स के उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इमेजिनरी लाइन से। ये जो लाइंस हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी स्टडी किया है, दीज इमेजिनरी लाइंस जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये इमेजिनरी लाइंस हैं। इन इमेजिनरी लाइंस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। And the electric lines of force are the path followed by a positive test charge in the field of source charge. Means source charge यहाँ पे point charge है जो कि वो electric field को generate कर रहा है. These lines are called electric lines of force and the electric lines are give properties of electric field due to charges. और ये electric field of lines जो है वो electric field की properties को भी describe करेंगे. Next हमारे पास हम लोग study करेंगे electric lines of force की properties. To understand the concept of electric lines of force, you have to watch the video.